मयूर सर, व्हाई डिड यू वांट टू जॉइन द आर्मी और आपने एसएसबी कहाँ पे ली थी? Trust me, I did not want to join the army. This system carried on for some time, and in 1971 war, that was the first war that was fought by these units as mechanized units. It has got anti-tank firepower, a 30 cannon, anti-tank guided missile, capability to float across water obstacles. It can be airlifted by helicopters, which I have done in my own career. Loss of life and property, not only of the civilians, but of the army also. And Uri was hit very badly. We very fortunate to meet Dr. Kalam. He visited a couple of locations and then came back to the mess, and I offered him some tea. So we were having tea with him, and he just noticed that missile badge. Now the missile man noticing the missile badge, ये एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन साल में एक बार जो करती है, वो हमने साल में 4 या 5 बार किया। जून के महीने में 2011 में सूडान गए, और उस वक्त साउथ सूडान नाम की कोई चीज़ थी नहीं। प्रोसेस चल रहा था एक नया देश बनाने का, और हमारे जाने के 1 महीने के बाद साउथ सूडान की, जो सूडान और साउथ सूडान की बॉर्डर वाले इलाके थे, वहाँ पे अपने बेस्ट लोग रखे। हज़ारों आदमियों का कॉलम मार्च कर रहा था एक 5000 लोगों के गांव को ख़त्म करने के लिए, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हमने एक रात में 300 किलोमीटर अपनी बीएमपीज़ को भेजा। तो ये 5000 आदमी को बचाने वाला कोई नहीं। नाउ तो आप पैसा वैसा हैंडल करते हो एकदम बहुत ज़्यादा। वैसे पहले भी किया होगा, लेकिन दिस इज लाइक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट बी डूइंग ह्यूज पीएनएल। इसको हम अपनी पार्लामेंस में स्ट्रे फायर इंसिडेंट बोलते थे। वो एक कॉन्वॉय को टारगेट करते थे कि ऐसा देखने में आया है कि टेररिस्ट आजकल कश्मीर में आर्मर पियर्सिंग गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल गोली से उनका काम चल नहीं रहा है। और मैं अपनी फेवरेट जगह फिर पहुंच गया, वैली और अवंतीपुर, जो कि पुलवामा में है। और आपने फोर्सेस का नाम सुना होगा, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स। विक्टर और किलो फोर्स कश्मीर वैली में है। वो आउटपुट लेना, जिसको कि मतलब आरआर में आप ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। अगर टेररिस्ट से लड़ रहे हैं आप, तो अब मेरे तो 4 अलग अलग यूनिट के लड़के थे, इसीलिए मैं टेररिस्ट निकल गया, ये दलील नहीं दे सकते आप किसी को वहाँ पे। हाय गाइस, वेलकम टू द सीजन 2 का पहला एपिसोड ऑफ रॉज दैट विद एनकेसी। एंड मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सारा समय ले लिया आपके सामने और एपिसोड्स लाने में, बट अब आपसे ये प्रॉमिस है मेरा कि नाउ यू विल कीप गेटिंग रेगुलर कंटेंट, and I'm going to talk more about the different branches, armed services of all three services: Indian Army, Navy, and the Air Force. So today it's a very special thing for us because बहुत लोगों ने मेरे से पूछा था, यार ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होता क्या है? व्हाट इज मैकेन? व्हाट इज मैकेन? होता क्या है ये? इन्फेंट्री ठीक है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होता है? So today I am here with Lieutenant Colonel Mayur Ambasht, 10 mechanized infantry, 20 Maratha Lai. Welcome to the set, sir. Thank you, Nikhil. Thanks for the opportunity. So, how do you like the set, sir, by the way? Excellent. It transports me back to 5 years earlier when I was in Fauj. So, sir, let's start. Like I keep saying, Roger that with NKC, officer-like qualities की कहानी, ex-GTO की जुबानी, powered by Olive Planet. They are manufacturers of premium military gear. Do check out their website, guys. So, let's start. Mayur sir, why did you want to join the army और आपने SSB कहाँ पे दी थी? Well, Nikhil, trust me, I did not want to join the army. So I joined the army with an interesting coincidence. When I was in class 12th, my classmates in Jodhpur were in a huddle and were planning something I could make out. And when I asked them, what is happening, guys? They said, we are all going for the NDA exam to Jaipur. Now that lure of going on that outing with them was too much. And for that, I filled the form. And as luck would have it, out of the whole group, I was the only one who passed. अच्छा. And that led to the SSB. I reached 34 SSB Allahabad. Again, when I saw there that there were people from Sainik schools, RIMC and whatnot, people who had prepared, coached and trained for SSB and who had an ambition to get into the armed forces, I realized I would be an unlikely candidate to succeed. So I thought as well enjoy for 5 days. And that I did. But as luck would have it, I was one of the 5 guys who got recommended from that 34 SSB. And thereafter, even medicals was a smooth sailing. Then you joined NDA.
Thereafter, I joined NDA. Which squadron, sir? I joined the Hunter Squad. Hunter. The Hunter Squad. So, sir, how did you land up in Mechan, sir? ये कैसे हुआ? Mechanized infantry. So, when we were cadets, see, the knowledge about different arms and services was not much. There was no internet for one, no exposure to YouTube, media, and whatnot, which is there today. And we were much influenced by our instructors, whether JCOs, NCOs, or officers. And when I was in IMA, my company commander was from mechanized infantry. And it so happens from my own unit. That happened later, of course. So we had the leeway of opting for an arm or service. Unit was destiny, of course. I had certain seniors from the Hunter Squad who were in mechanized infantry, a couple of years senior to me. And I had this idea in my mind that if those guys have gone to mechanized infantry, I think it must be a good regiment. And as you said, people ask कि mechanized infantry होता क्या है? We also thought ये mechanized infantry होता क्या है? Infantry तो हमें भी पता था. So the impression was that mechanized infantry would be the modern or the futuristic form of infantry, which of course may not be a very correct statement, but that was the impression I carried when I opted for mechanized infantry. No regrets, of course. I was very lucky and fortunate because, as they say, I am what I am because I was in mechanized infantry for last 20 years. So, sir, how is mechanized infantry different from any other regiment, armed service, or even regular infantry? Okay. So, Nikhil, for this, I'll have to go back in history a bit, not too far. So, say after 65 war, there was a need felt for a higher mobility for infantry because it could not match up with the armor, which was very, very fast and maneuverable force. So the idea of mechanized infantry came into existence at that time in its very nascent form. Certain infantry battalions were picked from each regiment, or rather 10 to 14 regiments. One battalion from Sikh, one from Mahar, one from Paras, one like that, and one from Marathas. And they were given armored personnel carriers because there were no BMPs at that time. So these APCs, इनकी अलग अलग मॉडल्स होते थे. पहले स्कॉट, BTR ऐसे APCs होते थे. तो these APCs were given to those battalions और उनका नाम चेंज हो गया. जो पहले 20 मराठा लाइट इन्फेंट्री थी उसका नाम हो गया 20 मराठा लाइट इन्फेंट्री विद इन द ब्रैकेट्स मैकेनाइज्ड. And this system carried on for some time, and in 1971 war, that was the first war that was fought by these units as mechanized units. When the value of these units was felt in that particular operation, in fact, my own battalion fought the war as a mechanized unit. That is a time when people realize that there is some more formal structure required. तो उस वक्त एक यूनिट राजपूत की, एक जैकलाई की, एक सिख की, एक मराठा की मैकेनाइज्ड टैग लगा के घूम रहे थे. एंड देन लेटर जनरल सुंदर जी इन हिज विजन ऑफ थिंग्स उन्होंने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट को प्लान करके फॉर्मुलेट किया. एंड इट इज 1979 दैट द रेजिमेंट एज सच केम इनटू एग्जिस्टेंस. दिस वाज एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दोज यूनिट्स which had been given armored personnel carriers, which later on, of course, in due course of time, were replaced by BMP ones. BMP. Yeah. Okay. So, so you've covered it well that ki exactly 20 Maratha Lai was then finally reincarnated or rechristened as 10 mechanics. Yes. Thickness 10. So it became 10 mechanized infantry, 20 Maratha Lai. First Sikh became 4 mech, first Sikh, like that. And as far as the difference is concerned, so there are too many differences. While infantry is foot soldiers and the weapons are fired by the individuals, the BMP gives a lot of strength and a lot of capability of maneuver to the infantry. And it has got anti-tank firepower, a 30 mm cannon, anti-tank guided missile, capability to float across water obstacles. It can be airlifted by helicopters, which I have done in my own career. It can do a lot of tasks with a lot of speed, alacrity, which maybe any other arm cannot
perform in their current form. And the best part is that it can hold ground like infantry. Okay. So, sir, you served for how many years? I served for 20 years. Okay. Can you list down the cardinal appointments that you have? Yes, definitely. I'll just take you through the sequence of my postings. I got commissioned in Ambala in 1999. Initial years were as a young officer. I did a lot of courses because in the mechanized infantry, you have to do infantry courses as well as the mechanized courses. You have to learn the tactics of the infantry as well as the armor. So first couple of years were spent doing that, on and off, coming back to the unit and going back for courses. Thereafter, When did you join the unit? I joined the unit on a very auspicious and unique day. It was the 31st of December 1999. Where was your unit that time? This was in Ambala. So Millennium Eve. Yeah. And on the New Year's Eve, I still remember it was my first night in the battalion and I was on quarter guard duty. Like a good bio. So that night I can never forget. And that was a start to a lot of good things. Right. So thereafter, then Parakram happened, and after we came back, I went for a radio and armament course. Then I was posted as ADC to GOC in the 19th Infantry Division, Baramulla. Who was the GOC at time? The GOC was Major General Harwant Krishan, now retired, of course. From there, I moved to 35 Rashtriya Rifles, Assam. Served there for 2 years. I came back to my unit, then took my company to Mao Infantry School as the demonstration mechanized company. Spent 2 years there. Came back again to my unit in Hisar. From there, I moved my boys to the United Nations mission in South Sudan. So This will be very interesting to discuss. it was a very happening and interesting tenure, not very congenial and happy, I would say, but very interesting. When I came back from there, I was the second in command of the unit in Hisar itself. Then moved my unit to Suratgarh in Rajasthan. From there, I moved as the adjutant of the Mechanized Infantry Regimental Center for a period of 2 years. From there to Avantipur in Pulwama as DQ, a logistics officer in headquarters of the Victor Force of RR. Spent 2 years there. And my last posting was as AAG in the headquarter Maharashtra, Gujarat and Goa area in Kolaba, Mumbai. Yes, it was in the close vicinity of Navy. We used to be in the same campus. And that is where I decided to hang my uniform. I did my bit to upskill, upgrade myself and retired from there and transitioned there itself. And I continue to be in Mumbai. So, sir, like you said, initial 5 years within the unit, and you had to do a lot of courses, right? Yes. तो हर कोई तो अभिमन्यु है नहीं ना कि बस माँ की कोख से सीख के आ गया. नहीं बिल्कुल So नहीं. this continuous learning is a part and parcel Yes. of a leader, right? You're leading men in operations and war. Correct. So, like I keep saying that ki, continuous improvement is a part and parcel of a leader. Yes. Can you highlight one of the times when you had to go out of your comfort zone to solve a challenging problem? Did you rediscover yourself in this process of continuous improvement and Kaizen? See, as far as the learning is concerned, I think it started pretty early from the NDA days, continued throughout my service in the mechanized infantry and outside my unit, and it is still continuing. Let me quote a small incident. I was a young officer. For the first time, we were taken for a flotation exercise on the Indira Gandhi Canal. I was doing the flotation for the first time. I had not done my young officer's course. This was in which vehicle, sir? This was in BMP2s. BMP2s, yeah. So this was an annual exercise. We used to do flotation every year. Now also battalions go for that exercise every year. And I was trained by my own drivers, my boys, my NCOs and Jawans. They taught me. And what happened was that the first time I went into the water, while coming out, although I had done a lot of dry runs on ground while being static, I still goofed it up. I did not get the BMP out in the first go. I had to turn around again, take a second pass and come back, and in the second go, I did it. Now, the technical officer and the officer in charge of the flotation was one Major Bhatti, later my CO, Colonel Bhatti. So his funda was that if you don't do it in the first go, you do push-ups. So it was applicable to each and every driver. So I, in my good sense, thought that I'm an officer. I may be excused.
So when I went, he said, "Yeah, what happened?" So I told him, "Sir, so and so issue, and it was an error on my part." So he said, "Okay, what are you waiting for? Standard operating procedure." So I just looked at him and he looked at me. Both of us ex-NDAs, by the way. And it was that typical moment I felt that, first termer and sixth termer looking at each other and showing doubts. So he said, "No, there is no leeway for you. Please go ahead." And I thought the better of it. I didn't show any doubts. I did my push-ups and I felt pretty bad at that time. In the evening over the mess drinks and all, he called me to one side. I was trying to stay away from him for obvious reasons. He was the adjutant of the battalion also. So he said, "What happened today? You were showing doubts to me. Didn't want to do push-ups." I said, "No, sir, nothing like that." He said, "See, remember one thing, that when it comes to professional work, there is no leeway for an officer. There is no discount in the standards. It only gets tougher. You have to be better. So if you have to be as good or better than these drivers, then you better take the punishment as much as he's taking. So there is no leeway there." I would say that somehow was the start of the learning process. Later on, also, it is not only the technical aspects, but handling of men. I remember a time when I was in Mao, and one of my boys, while putting the BMP on a tank transporter, he somehow managed to topple it. Topple in the sense turtle, upside down. So he was trying to get the BMP. He was a young Sipahi, and he was trying to get the BMP onto the Tatra, and one track went off and it hung like that. So my JCO, he said, "Okay, nothing doing. You will do it." So he put the BMP again on the ground and said, "Do it again." Now this time he did a shade better. This time he toppled it. So it was night time. I got a call that साहब ऐसा ऐसा हो गया है. तो I said, "साहब लड़का ठीक है?" He said, "साहब लड़का ठीक है, BMP का तो सत्यानाश हो गया है." So I said, "Okay, wait, I'll get a jeep and come." तो जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा BMP उल्टी पड़ी है, एंड वो सिपाही खड़ा हुआ था, एंड ही वाज लिटरली शिवरिंग बिकॉज उसकी 6-7 महीने सर्विस थी. सो आई वाज अ बिट एंग्री. थोड़ा गुस्सा तो आया क्योंकि वो BMP को रिपेयर करना एक महाभारत था. मिसाइल लॉन्चर टूट गया था, साइड्स खराब हो गई थी, कपोला टूट गया था, हैच का जो लिड रहता है वो टूट गया था. सो मैंने कहा ठीक है साहब, अभी इसको सीधा करते हैं. उसके बाद सीधा किया उसको, 2 ARVs लगा, रिकवरी व्हीकल्स लगा के उसको सीधा किया हमने. एंड देन आई सेड, दूसरे ड्राइवर को बुलाओ, चढ़ाएगा और लेके जाएगा इसको, सीधा वर्कशॉप लेके जाओ. सो माई टेक्निकल JCO केम टू मी. ही वॉज एन ओल्ड मैन. आई वॉज अ मेजर विद अबाउट 9 years ऑफ सर्विस, 10 years ऑफ सर्विस. ही सेड, "साहब यही सिपाही को बोलो चढ़ाने के लिए." आई सेड, 2 बार गिरा चुका है, अभी आप बोल रहे हो तीसरी बार. अरे साहब, BMP रिपेयर हो जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस रिपेयर नहीं होगा. So crux of the thing is that at the age of, or rather at the service of 10 years also, I was learning from my NCOs, JCOs. And thereafter, when I went to Kashmir again, when I came to probably Kolaba and handling accounts and finance, it was a new thing for me. I kept learning. Then when I decided to hang my uniform, I realized that I required to upskill and I required to learn the ways of outside. I did my MBA as a serving officer, attending night classes, learning how to catch a train from Churchgate at 5 o'clock in the evening, the rush hour. So I learned. And then I did MBA at the age of 42. And I am still learning. And I think it's not going to stop. Self-improvement and learning is a continuous process till the very last day of a person, in my opinion. And I follow that as a dictum. I think I'll stick to that. So were you as a part of Op Parakram? Yes, I was in the Op Parakram. We were a part of an independent armored brigade in Ambala, and we stayed in Op Parakram for good about 1.5 years. It was a prolonged deployment. We moved locations 5-7 times, and it was one of the most educative times of my career. It so happened that because of the operational scenario, the younger officers got elevated to higher responsibilities. I was one of those.
I would say, fortunate few. And I was the quartermaster of the unit at that time. So handling of logistics in a, if you have heard about Oprakram, we almost went to war. So there was no bookish exercise going on there. We were preparing for actuals. So my learning happened in the actual scenario where there was no scale down thing or telescope thing. It was actuals as it should be in war. So I learned the logistics aspect of a mechanized battalion, and I understood the nuances of feeding, clothing, and equipping 7 to 800 people in war in a very, very meticulous fashion. Do you guys also handle ammunition? Whole lot of ammunition. No, I mean in terms of logistics and supply chain. Yes, because logistics in deserts is a challenge, and mechanized infantry operates in deserts and plains. So there is a point where the services hand over the ammunition to you, and thereafter you are the owner and manager of that ammunition. So it's storage, upkeep, maintenance, and transportation, and making sure that it reaches the man, the tank, the BMP where it is required. It is the responsibility of the logisticians of that particular formation and the unit. Is it right to us that can you put a dollar value on this? कि कितना पैसा होगा ये? I really won't be able to do it in today's date. I remember that at that time I was told that a missile used to cost about 14 lakh or something. We were holding about 120 of them. So it is just the missile that we are talking about. If you talk of the oils, lubes, fuel, rations, ammunition of the rocket launchers, main guns, missiles, and the spares for the BMPs and the clothing and other aspects, so many things are there. It will, today's time, I guess it would run into millions of dollars. Now I have been out of service for 5 years, so I really can't put a figure to that. This needs very meticulous planning and Absolutely. And let me tell you something very interesting. My planning used to be in a small 6 inches notebook and a pen, which used to be my pocket content and my main weapon. So my CEO used to joke about it कि इसका जो हथियार है वो इसकी नोटबुक और इसका कैलकुलेटर है. Because I used to calculate the weight carrying capacity कि एक ALS में, एक स्टैलियन में कितना एमिनिशन फिट हो जाएगा, एक 2.5 टन में कितना हो जाएगा, और कहीं वो गाड़ी चली ना पाए ज़्यादा लोड उठाने के बाद, फिर पानी कितना कैरी कर सकते हैं, फ्यूल, वो सब मैं कैलकुलेटर से, बिकॉज मैं एक बहुत ही बड़ा नॉन टेकी हूँ. तो आई एम अ बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम NDA, and that means I am very uneducated. and that's Jawaharlal Nehru University. By Absolutely. But don't ask me what I learned there because I don't remember. So it was a challenge, yes, but I learned because I knew that it was a very critical thing at that time. So, sir, next I think you said you went as ADC. Yes, I went as ADC to GOC 19 Infantry Division Baramulla. Any highlights of that? See, 19 Infantry Division is located on the line of control, and the areas of Uri, Rampur, Nogam, and the Baramulla town itself, which is a very critical town, it falls under the scope of 19 Div. And during my tenure, there were a couple of very, very interesting incidents that happened. One was the opening of the Uri Muzaffarabad bus access and the construction of the Kaman bridge, which is, I think, called the Aman Setu now. So this happened, and you must have heard of later General Sayyid Ata Hasnan. He was the brigade commander. Yes. The second highlight of that tenure was the earthquake that happened in 2005 in Kashmir. It was a major one. There was a lot of loss of life and property, not only of the civilians, but of the army also. And Uri was hit very badly. I remember General Huda was a brigade commander at that time. And we saw a lot of, I got the good fortune of meeting a lot of VVIPs at that time, because in that chaos, everyone wanted to visit that place and take stock themselves. Very educative, and I got to see the nuances of disaster management up close, right while being on ground zero. So that was a very, very good and educative tenure for me.
So I feel I think we're missing something, but which I know. I'll touch upon it. I think you happen to meet Dr. APJ also. Yes, I did happen to be very fortunate to meet Dr. Kalam. So it was very interesting since he was visiting, and there were the availability of officers was very poor at that time because people were very hard pressed for time and resources. So my GOC told me that you please stick to the Supreme Commander because his administration has to be looked after. So I got in touch with his ADC. He flew in by Hepters, and I was supposed to look after his requirements, which turned out to be near zero. He was I would say, one of the simplest people I've seen. So one funny thing that happened was that I used to wear this missile badge on top of my. So he visited a couple of locations and then came back to the mess, and I offered him some tea. So we were having tea with him, and he just noticed that missile badge. Now the missile man noticing the missile badge, it is going to pique his interest. I didn't realize, of course. It was part of my uniform, so I was wearing it. I had done the radio and armament course, and I had fired missiles. So he asks me, Captain, what is this badge? And that scared me very much because I thought he would ask me something about these missiles, and I didn't remember much. So I said, sir, I have fired anti-tank guided missiles and I have done a course, and that is why I wear this badge, sir. So he said, oh, which missiles, which missiles? I realized this conversation is going to get longer. So then I said, sir, I have fired a Faggot and Conkers missile. And then he broke into a monologue about the Conkers and Faggot missiles. I kept quiet. Obviously, the Supreme Commander was speaking. The interesting thing was that when he was to return, incidentally, the weather packed up and Hepters could not take off. And I had to pack a hamper for him for the route because he had to go by road now to Srinagar. I asked his ADC, what does the Supreme Commander eat? He said, give me a packet of biscuits and 2 packets of juices, real juice or whatever you have, if you have it in the mess. I was quite appalled because you would know that it would be criminal to treat the Supreme Commander in such a frugal manner. In our culture, that doesn't happen. Forge is all about etiquettes and yes. So I was mentally prepared to, pack sandwiches and some, say, roti sabzi, puri sabzis, whatever simple thing we could cook up for him. So I said, नहीं sir, ऐसे कैसे होगा? कुछ तो देना पड़ेगा. बहुत लंबा रास्ता है श्रीनगर का. He said, Mayur. He was a Dogra officer, I remember. He said, Mayur, जो मैंने बताया है उतना ही देना, नहीं तो बॉस नाराज हो जाएंगे. I said, then I got scared. I said, okay, sir, what are you saying? And trust me, that was the requirement of the gentleman. And from the ADC, I came to know that he was a man of, I would say, frugal habits and few possessions. A lot to learn. So that was one of the highlights. So, फिर उसके बाद you went to RR, I think. Thereafter, I moved to RR. I was very fortunate to go to 35 RR, which is affiliated to the Assam Regiment. क्या खास बात है सिर्फ RR की? RR खास है और Assam Regiment भी खास है. So, Assam Regiment, as you must be aware, कि इनका जो troops का intake है, it is from all 7 sisters of Northeast. Yeah. And उसमें Nagas, Mizos, Assamese from plains, Assamese from mountains, Garo, Khasi, Kuki, all tribal entities, they all mix up. And RR की खास बात ये है कि क्योंकि उसका एक मेजर एफिलिएशन होता है, एक माइनर एफिलिएशन होता है, तो majority of troops will come from Assam Regiment and a smaller percentage, say 30%, will come from mechanized infantry, and there will be people from ASC, Ordnance, EME to look after the workshop aspects. तो जो असम रेजिमेंट के लड़के हैं वो भी किसी एक बटालियन के नहीं होंगे, वो से 1st to 5 असम के एक यूनिट में आएंगे, और मैकेनाइज्ड वाले भी से 11 से लेके 13 तक एक यूनिट में आएंगे. तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 7 से 8 बटालियंस के और अगेन 5 से 7 आर्म्स और सर्विसेज के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं. इसमें से 25% लोग अभी अभी आए हैं, 25% लोग जाने वाले हैं, 50% हैं जो अपने टेन्योर के बीच में चल रहे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है
एक कमांडिंग ऑफिसर के लिए, एक कंपनी कमांडर के लिए ऑपरेशंस तो करना ही है, वो ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं जो कि आपस में इतने कोहेसिव नहीं है, मल्टी कल्चरल, मल्टी आर्म, मल्टी सर्विस, एंड पहले एक टीम के तौर पे काम नहीं किया है, तो उनको एक साथ जोड़ना और वो आउटपुट लेना, जिसको कि मतलब आरआर में आप ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो रिजल्ट चाहिए तो चाहिए। अगर टेररिस्ट से लड़ रहे हैं आप, तो अब मेरे तो 4 अलग अलग यूनिट के लड़के थे इसीलिए मैं टेररिस्ट निकल गया, ये दलील नहीं दे सकते आप किसी को वहां पे। तो वो एक लीडरशिप चैलेंज था और वो टेन्योर मेरे लिए बहुत ही एजुकेटिव था, मैंने एंजॉय बहुत किया। और खास बात मेरे टेन्योर की ये रही कि उस एक टेन्योर में मैंने बडगाम में नौकरी की, मैंने अनंतनाग में हाईवे डोमिनेशन टीम कमांडर किया, उसके बाद मैं अपनी कंपनी को लेके लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुपवाड़ा में तैनात हुआ, मच्छल सेक्टर में। तो मैंने अपनी जगह करीब 4 या 5 बार चेंज की उस दौरान, और मैं ओल्ड एयरफील्ड या एयरपोर्ट श्रीनगर का जो है उसका भी कंपनी कमांडर रहा 6-7 महीने। तो मेरे ये लड़के जो थे, मैं इनको लेके 4 बार जब जगह चेंज कर गया तो हम इतने कोहेसिव हो गए कि हम कहते हैं ना, बंजारे जब चलते हैं तो वो फिर आपस में बहुत ठीक हो जाते हैं। So this is brotherhood. दैट इज ब्रदर That is brotherhood. एंड वी डिड गुड ऑपरेशंस। जब हम श्रीनगर वाले इलाके में थे, हमने अपने इलाके में कभी कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया। जब हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे तो हमारे जो हमारा जिम्मेवारी का इलाका था उसमें से कभी कोई मिलिटेंट को घुसने नहीं दिया। और वो जगह थोड़ी सी अनकंजीनियल थी, मच्छल सेक्टर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, टरेन बहुत ख़राब है, थोड़ा कट ऑफ है, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, बात नहीं होती थी, 3 महीने में एक बार बात होती थी घर पे। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, मोराल को हाई रखना बहुत बड़ा चैलेंज था। ऊपर से बर्फ़ पड़ती थी तो मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो उसमें ब्राइटर एस्पेक्ट ये होते थे कि मेरे जवान जो थे वो शिकारी बहुत अव्वल दर्जे के थे। तो असम रेजिमेंट के लड़के जो खासकर जो माउंटेन्स वाले हैं, उनको शिकार करने का बहुत शौक है। उनके शिकार का फायदा मैं उठाता था क्योंकि शेयर ऑफ द शिकार वुड बी माइन ऑफ कोर्स। तो जो भी डिश बनती थी वो मैं उनके साथ शेयर करता था तो मैंने बहुत एंजॉय किया एंड वो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग बने। और उनके साथ जो मेरा एक सेंस ऑफ ओनरशिप था वो बहुत तगड़ा था। और आपको पता होगा असम रेजिमेंट का जो सैल्यूटेशन है, तगड़ा रहो। वो जो कनेक्ट था लड़कों के साथ, और वो बात तक बना रहा। अपनी कंपनी को लेके मऊ गया एज अ डेमोन्स्ट्रेशन मैकेनाइज्ड कंपनी कमांडर। तो मेरी पूरी कंपनी हिसार से उठ के मैं लेके गया, बीएमपीज के साथ हम गए मऊ। और वहाँ हमारा काम था, जो स्टूडेंट ऑफिसर्स होते थे सीनियर कमांड और जूनियर कमांड कोर्सेज के, उनको आर्मर अपने मैनूवर्स और एक्सरसाइजेस कैसे करता है, उनकी टैक्टिक्स क्या है, उसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देके दिखाना, इंक्लूडिंग द फायरिंग ऑफ टैंक्स, बीएमपीज। तो एक आर्मर का स्क्वाड ने, एक आर्टिलरी की बैटरी, एक मैकेनाइज्ड की कंपनी, ये वहाँ पे तैनात रहती है हमेशा। वो भी एक अच्छा एक्सपोजर था मेरे लिए, बिकॉज मैं वहाँ पे इंडिपेंडेंट था, कोई बैकअप नहीं था। मेरे सीओ साहब जो हैं वो हिसार में बैठे थे और मैं मऊ में बैठा था। अगर मैं उनसे कोई गाइडेंस या मदद चाहता भी तो वो रिमोटली कितना हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो एक पलटन में जब आप होते हैं तो आपके पास एक एडजुटेंट है, क्वार्टर मास्टर है, टेक्निकल ऑफिसर है, वो आपकी मदद करेंगे अपने अपने काम करके। यहाँ पे आप ही सब कुछ है। कोई गदर हो गया तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ अच्छा किया तो भी आप क्रेडिट लेंगे, और कोई भी काम है तो वो आप ही को करना है। So it's a one-man show. काइंड ऑफ Extreme sense of responsibility. तो एक्सट्रीम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और एक दो बार कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैंने लताड़ भी खाई और मैंने खड़े होके सावधान में ओनअप भी किया जनरल साहब के सामने कि श्रीमान मेरी कंपनी की गलती है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एंड हमने फिर गलतियों का उसको ठीक किया। और बट वो भी टेन्योर ऐसा था जिसके अंदर की ट्रेनिंग की जो पीक हो सकती है, ये एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन साल में एक बार जो करती है, वो हमने साल में 4 या 5 बार किया। फायरिंग की, फ्लोटेशन किया। कोई भी ऐसा आदमी मैंने कंपनी में नहीं छोड़ा जिसने कि अपने प्रोफेशनल काम को टच ना किया हो उस 2 साल के टेन्योर पे।
जो गनर था उसने फायरिंग की, जो ड्राइवर था उसने बीएमपी फ्लोट कराई, ड्राइव की। इतना इतना रिच एक्सपीरियंस हुआ कि वो अभी तक वो जो यंग सिपाही थे उस समय, वो उस ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं और वो लीडरशिप पोजीशंस में अभी काम कर रहे हैं। तो देन इसके बाद देन आप फिर हाँ, इसके बाद मैं फिर दोबारा, बन गए। हाँ, दोबारा मैं यूनिट में आया और कुछ दिन के बाद ही फिर मैं यूएन मिशन पे गया। सो मेरे पास हम 5 ऑफिसर थे और 200 जेसीओ और जवान थे। उस वक्त एक कंपनी सूडान में तैनात थी, एक मैकेनाइज्ड कंपनी, और हमारे पास 5 लोकेशन थी, एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ। इंटरेस्टिंग वाकया इस तरह से हुआ कि हम जून के महीने में 2011 में सूडान गए और उस वक्त साउथ सूडान नाम की कोई चीज़ थी नहीं। प्रोसेस चल रहा था एक नया देश बनाने का, और हमारे जाने के 1 महीने के बाद साउथ सूडान, it came into existence. So I saw that phenomenon happening, how the new nation came into existence, how the old nation delinked, how the currency changed. और इसमें गड़बड़ ये हुई कि हमारा पूरा एप्रिसिएशन जो था, हमने ये सोचा था कि हमने अपना 1947 वाला टेम्पलेट लिया कि झगड़ा ये दोनों देशों में हो जाएगा। तो हमने अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है कि कौन से बंदे कहाँ रखने हैं, हमने इस तरह से रखा कि जो सूडान और साउथ सूडान की बॉर्डर वाले इलाके थे वहां पे अपने बेस्ट लोग रखे। और मामला कुछ उल्टा हो गया। हमारे वहाँ 4-5 महीने निकालने के बाद लड़ाई साउथ सूडान के अंदर स्टार्ट हो गई। 2 ट्राइब्स 3 ट्राइब्स आपस में लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। गांव के गांव 500,000 लोग एक एक रात में डिस्ट्रॉय हो रहे थे। और इट वाज मर्सीलेस, ब्रूटल किलिंग ऑफ ईच अदर्स पीपल बाय दीज ट्राइब्स। उस दौरान यूएन को भी समझ में आया कि ये अभी पीस कीपिंग से मामला आगे निकल गया है, तो हमारा जो चार्टर है उसको चेंज किया गया। पीस कीपिंग से 1 डिग्री आगे बढ़ा के हमें पीस एनफोर्समेंट के रोल में डाला गया। और हमने सोचा कि शायद कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, बट चीज़ें बद से बदतर हुई। और फाइनली हमने वहाँ पे ऐसी सिचुएशन देखी जिसमें कि बिल्कुल लड़ने वालों से आमने सामने होना पड़ा। और मेरी बीएमपीज, जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, जो मैंने इंडिया में नहीं देखा था ऑन ग्राउंड, सचमुच के ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशन पराक्रम में भी हम लड़ाई होते 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 और वापस आ गए थे, बट यहाँ पे हमें बीएमपीज को एक्चुअली डिप्लॉय करना पड़ा। और ये एक बड़ा अच्छा टेन्योर मेरे लिए था, बिकॉज ये एक अलग ही प्रकार का चैलेंज था। एक तो अपनी जमीन नहीं थी, कोई लिंक नहीं था पीछे से, कोई सपोर्ट नहीं था, जो भी करना था हमने करना था वहां पे। मतलब ये भी नहीं कि सीओ साहब हिसार में बैठे हों, ट्रेन से आ जाएगा सामान अगर कुछ मुझे चाहिए तो। यहाँ तो हम साउथ सूडान में थे और मुसीबतें बहुत थी, क्योंकि वहां पे उस वक्त तक कोई वाकया हुआ नहीं था। तो स्पेयर्स की प्रॉब्लम थी, बैटरीज की प्रॉब्लम थी, और मेरे सामने सवाल ये नहीं था कि ये बीएमपी चलेंगी या नहीं चलेंगी, वो बीएमपी को चलना था। तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो सिस्टम है वो है कंटिजेंट ओन्ड इक्विपमेंट का। तो कंटिजेंट अपना इक्विपमेंट खुद प्रोवाइड करता है। तो हमारी इंडियन बीएमपीज वहाँ पे थी, इंडियन आर्मी की, अपने ही जो 4 व्हीलर्स थे वो भी हमारे ही थे। तो वो बीएमपीज वहाँ पे 7-8 साल से थी। तो आप समझ सकते हैं कि 7-8 साल में उनकी क्या हालत हो गई हो। तो ये जो कंटिजेंट ओन्ड इक्विपमेंट है, इसकी इंस्पेक्शन करने यूएन के इंस्पेक्टर्स आते थे। तो हमारे केस में क्योंकि ये बीएमपी रशियन इक्विपमेंट था, इसकी इंस्पेक्शन के लिए एक श्रीमान जो कि रशियन थे, अब वो फौजी थे या सिविलियन मुझे याद नहीं है, बट वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ये इक्विपमेंट चलेगा? तो मैंने कहा हाँ, हम बिल्कुल इंस्पेक्शन के लिए रेडी हैं, आपको चला के दिखाएंगे। तो वो हंसने लगे, थोड़ा एक सार्कास्टिक वाला सिस्टम जो था। कहते कि अरे मेजर साहब, आई नो इट विल रन, बट आई डोंट वांट टू नो वेदर इट विल रन इन द इंस्पेक्शन। अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो चलेगी ये बीएमपी? तो मैंने कहा हाँ चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। 3-4 महीने हमें हो चुके थे और हमने काफ़ी मेहनत की थी उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो कहते हैं अरे आई नो दिस विल नॉट रन 1 किलोमीटर ऑल्सो।
तो मुझे बड़ा बुरा लगा, एंड आई डिसाइडेड टू टेक दिस पॉइंट टू माई बॉयज। तो मेरी 5 लोकेशंस थी, और मैं हर महीने हर लोकेशन में जाता था अपनी प्लेटून से मिलने के लिए। एक ऑफिसर और 30-40 जवान हर लोकेशन में थे। तो मैंने वहां जाके, जब मैं उनसे बातचीत करता था, एक सैनिक सम्मेलन टाइप का एक छोटा सा होता था, मैंने उसमें बताया कि मुझे एक रशियन ने आके ऐसे ऐसे बोला है, और उसका कहना यह है कि हमारी बीएमपीज ना 1 किलोमीटर नहीं चलेंगी, और हमें चाहे जो भी हो इस चीज को गलत साबित करना है। और वो जो 2-3 दिन मैं वहां रहता था, तो मैं खुद एक पूरा इंस्पेक्शन अपनी बीएमपीज का करता था, और जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही थी हम उसको तरीके निकाल रहे थे सॉल्व करने के। तो एक समय ऐसा आ गया जबकि ये लड़ाई वड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरी बीएमपी चलेंगी, और वो फिर लड़ाई में हमने करके दिखाया। तो ऐसे वाकये काफ़ी सारे हुए यूएन मिशन में। और उसके बाद एक ऐसा किस्सा भी हुआ जब एक हजारों आदमियों का कॉलम मार्च कर रहा था एक 5,000 लोगों के गांव को ख़त्म करने के लिए, और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए हमने एक रात में 300 किलोमीटर अपनी बीएमपीज को भेजा। 300 किलोमीटर बाय द वे इंडियन आर्मी की ऑपरेशंस में भी शायद मुमकिन ना हो एक रात में, वो हमने अफ्रीका में किया। एक मुझसे 6 महीने जूनियर ऑफिसर हैं, नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष सिंह, वो मेरे कंपनी 2IC थे। ही took the BMPs 300 kilometers in a night. We had a brief chat over a phone, and I told him कि जहां तक हो सकता है जाइए, कोशिश पक्का करनी है, क्योंकि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये 5,000 आदमी को बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके पहले इन्फेंट्री के ट्रूप्स के द्वारा कोशिश की गई थी, और वो नंबर्स बहुत ज़्यादा थे जो ट्राइबल्स मार्च कर रहे थे, तो उनसे नहीं हो पाया, उनको नहीं रोक पाए। तो इस तरह से हमने उस मिशन में अच्छा काम किया, और काफ़ी सराहा गया हमारे काम को। और इसके बाद जो हेडक्वार्टर था उस यूएन मिशन का, उन्होंने भी इस बात को लिखित में हमें बताया कि ट्रैक्ड व्हीकल्स का, बीएमपीस का एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि उनको समझ में आया है। और उसके बाद उन्होंने एक की बजाय 2 कंपनीज वहां पे इंडिया से लेके और डिप्लॉय की, जो कि आज भी वहां पे तैनात है। तो ये टेन्योर मेरा उसके बाद वाला टेन्योर था। उसके बाद मैं फिर वापस अपने यूनिट में आ गया, और मैं फिर सेकंड इन कमांड बना अपने यूनिट का। दिस वाज इन हिसार। फिर मैंने अपनी यूनिट को मूव किया सूरतगढ़। हमने राजस्थान में, उसके बाद 1 साल मैं वहाँ 2IC रहा, और उसके बाद मैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, जो मेरी रेजिमेंट का सेंटर है अहमदनगर में, उसका एडजुटेंट यानी दंडपाल, जो कि एक मैं कहता हूँ कि बहुत पसंदीदा अपॉइंटमेंट नहीं है लोगों का। तो एक टेंशन वाला काम भी है, और एक बहुत जिम्मेवारी वाला काम है। हमारा सेंटर एक बहुत बड़ा सेंटर है, जिसके अंदर न सिर्फ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट बल्कि गार्ड्स के जो यंग सोल्जर्स हैं उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है, और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवानों की इन्फेंट्री ट्रेनिंग भी होती है। सर अभी आपने क्योंकि गार्ड्स मेंशन किया है, जी तो गार्ड्स रेजिमेंट राइट, हाँ, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स राइट, यस, ये पूरा ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स इज नाउ मेकिन, डू दे आल्सो हैव? यस यस। सो इनिशियली ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स एक इन्फेंट्री की रेजिमेंट होती थी। फिर जब एक एक बटालियन कन्वर्ट होना शुरू हुई एक एक रेजिमेंट से, तो उसके बाद एक समय ऐसा आया जबकि गार्ड्स को ईयरमार्क किया गया पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 71 वॉर के बाद में काफी बात की बात है। तो गार्ड्स रेजिमेंट आज की तारीख में उनकी करीब 17 एक बटालियन है मेरे ख्याल से, जो कि मैकेनाइज्ड हैं सभी की सभी। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट इसकी करीब 27 बटालियन है, जो कि पूरी की पूरी मैकेनाइज्ड है। और कुल मिला के ये कह सकता हूं कि गार्ड्स में और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में यूनिफॉर्म के अलावा किसी चीज का फर्क नहीं है। इक्विपमेंट सेम है, ट्रेनिंग सेम है, कल्चर सेम है, सेम जगहों पे नौकरी करते हैं, रोल भी सेम है, ऑपरेशंस भी सेम है। इट इज जस्ट कि एक रेजिमेंट अलग अलग और यूनिफॉर्म अलग अलग है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है।
तो इसके बाद सर देन आफ्टर 2IC एंड एडजुटेंट, आफ्टर दिस एडजुटेंट? उसके बाद मेरी पोस्टिंग कश्मीर में हुई दोबारा। अ, मुझे कहना चाहिए तीसरी पोस्टिंग कश्मीर में। और मैं अपनी फेवरेट जगह फिर पहुंच गया, वैली और अवंतीपुर, जो कि पुलवामा में है। और आपने फोर्सेस का नाम सुना होगा, विक्टर फोर्स, किलो फोर्स। तो विक्टर और किलो फोर्स कश्मीर वैली में है। तो मैं विक्टर फोर्स में, जिसमें कि मैं पहले भी 35 RR के अंदर काम कर चुका था, उसमें एज ए DQ, अगेन लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के तौर पे मैं गया। तो वहाँ पे लॉजिस्टिक्स और लैंड रिलेटेड इश्यूज मैं हैंडल करता था। 2 साल तक मैंने किया। सो बेसिकली सर लेट्स सी, नाउ तो आप पैसा वैसा हैंडल कर रहे हो एकदम बहुत ज़्यादा, वैसे पहले भी किया होगा लेकिन दिस इज लाइक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट बी डूइंग ह्यूज P&L. तो I want to ask this, there's a very thin line between being a spendthrift and a frugal, right? तो कैन यू हाईलाइट अ प्रोजेक्ट, क्योंकि DQ लॉजिस्टिक्स डायरेक्ट पैसे का इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्ट P&L, जी जी। तो कैन यू हाईलाइट अ प्रोजेक्ट जहाँ पे यू मैनेज टू कंप्लीट एंड डिलीवर विदाउट रिक्वायरिंग एनी एडिशनल रिसोर्सेस और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एज सच, बट यू हैव टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स, एंड क्योंकि ये ऑपरेशनल एरिया में। यस यस। सो थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। सो जब मैं वहाँ पे था, 2016 में मैं वहाँ पहुँचा। और उस वक्त एक समस्या हमें आ रही थी, बिकॉज हमारे इलाके में जवाहर टनल से लेके श्रीनगर तक का, जम्मू श्रीनगर हाईवे का जो पोर्शन है वो आता था। और जो हमारे कॉन्वॉय मूव करते थे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के कॉन्वॉय हों चाहे पैसेंजर्स के, जो जवान छुट्टी काट के आते थे, वो जम्मू से उसमें बैठते थे और श्रीनगर में आके उतरते थे। और जो छुट्टी जाते थे श्रीनगर से बैठते थे और जम्मू में जाके उतरते थे। वहां से ट्रेन ट्रेन पकड़ के अपना निकल जाते थे। ये एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते थे, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। क्यूआरटी लगी होती थी, बट वो बसों में बैठ के जाते थे। और वो छुट्टी मोड में जब आदमी होता है ना, तो वो एक बड़ा कमजोर टारगेट बन जाता है। और ये मिलिटेंट जो टेररिस्ट थे कश्मीर के उस टाइम, कई ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे जिसको हम अपनी पार्लेंस में स्ट्रे फायर इंसिडेंट बोलते थे। वो एक कॉन्वॉय को टारगेट करते थे। वो आरआर की कंपनी पे नहीं हमला करते थे। ये जो डिफेंसलेस कॉन्वॉय होता था, डिफेंसलेस तो नहीं था बट एक मूविंग टारगेट था और लोग जर्नी में थे, उस पर हमला करते थे। और वो बसें क्योंकि सॉफ्ट स्किन थी, तो वो कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज होती रहती थी। और ऑपरेशंस में भी गाड़ियों में प्रोटेक्शन नहीं था, थोड़ा सा इसका अभाव था। तो सीनियर लीडरशिप जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ व्हीकल्स को रीइंफोर्स करना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट हमने किया बुलेट प्रूफिंग ऑफ व्हीकल्स का। और इसके अंदर, क्योंकि मैं मैकेनाइज्ड का ऑफिसर था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने भी अपना दिमाग लगाया। कुछ मैंने एक वेंडर के साथ इंजीनियरिंग का जोड़ तोड़ करके, हालांकि हूं तो मैं बहुत बड़ा नॉन टेकी, लेकिन कोशिश पूरी की। और उसने अपने एक सिविलियन माइंडसेट से एक डिज़ाइन बना के दिया, और फिर मैंने उसको अपने फौजी जोड़ तोड़ से उसको एक वायबल डिज़ाइन में कन्वर्ट करके, और फिर हमने जिप्सी, स्कॉर्पियो, सफारीज, बसेस, ट्रक्स, इवन डोजर्स और जेसीबीज, उसमें भी हमने बुलेट प्रूफ कांच और बुलेट प्रूफ प्लेट्स लाइट वेट की लगाई, जिससे कि पहली जो गोली की बौछार आए टेररिस्ट से, उसको पेनिट्रेट न कर पाए। क्योंकि हमें पता है कि पहली गोली की बौछार के बाद में सब अलर्ट हो जाएंगे और उसके बाद तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बट जब आदमी का गार्ड डाउन है, तब जान नहीं जानी चाहिए किसी। और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने हैंडल किया। उसकी पूरी सप्लाई चेन फ्रॉम जयपुर टू अवंतीपुर। अवंतीपुर में एक छोटी सी वर्कशॉप, जिसमें एक जेसीओ साहब थे मेरे अंडर में। कोई ईएमई ऑफिसर अनफॉर्चुनेटली नहीं था मौजूद हमारे पास। तो क्योंकि हमें थोड़ी थी नॉलेज टेक्निकल चीज़ों की, क्योंकि हम अपनी पलटन में करते थे, तो मैंने ही उसको कोशिश किया ऐसा सेट करने का कि व्हीकल आया एक दिन के अंदर वापस। और जिप्सीज को, और वो धीरे धीरे एक टारगेट रखा कि हर एक यूनिट में एक बराबर बांट की जाए। और थोड़े दिन के बाद ये इंसिडेंट्स कम होने लगे, क्योंकि गोली अगर चली भी तो वो बुलेट प्रूफ प्लेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाई। तो मिलिटेंट्स को भी समझ में आया। और आपने रिसेंटली शायद सुना भी होगा कि ऐसा देखने में आया है कि टेररिस्ट आजकल कश्मीर में आर्मर पियर्सिंग गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल गोली से उनका काम चल नहीं रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और करोड़ों का प्रोजेक्ट था।
रिसोर्सेज हमारे पास जो फंड्स सरकारी होते हैं उसी में काम चलाना भी है, तो वो भी एक चैलेंज था। और आप समझते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो वो भी एक लॉजिस्टिक्स चैलेंज रहता है, क्योंकि ये जब हुआ वो उस समय का वक्त था। अगर आपको याद हो, बुरहान वानी नाम का एक टेररिस्ट है, जिसको कि आई थिंक 9RR ने उसको एलिमिनेट किया, और उसके बाद वैली में बहुत बवाल हुआ। और फिर भी से 9RR ने 72 करोड़ के पास पहुंचा दिया। कुछ भी कह सकते हैं आप, Yeah, बट आई वुड रादर गो बाय द ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी. yeah, He was eliminated, and he was a nuisance basically, yeah. but that caused a lot of civil unrest. And मैं उस वक्त 1-2 महीने ही हुए थे मुझे वहाँ पहुँचे हुए, और मैंने काफ़ी झेला उस प्रॉब्लम को, क्योंकि मेरा काम लॉजिस्टिक्स का था और सारी लॉजिस्टिक्स की सप्लाई बंद हो गई, कॉन्वॉय चलने बंद हो गए, कुछ समय वैसा चला। और फिर भी उस चैलेंज को हमने फेस किया, बहुत लोगों ने पत्थरबाजी की, सब कुछ हुआ, और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी हमने ठीक-ठाक हैंडल किया और लॉजिस्टिक्स रीएस्टैब्लिश की। और उसके बाद फिर ये उसके मद्देनज़र ये बुलेट प्रूफिंग का प्रोजेक्ट चला, बिकॉज़ फ़ौज का एक छोटा-सा उसूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जवान की जान नहीं जानी चाहिए। लड़ाई से कोई नहीं घबराता, लेकिन जब आदमी का गार्ड डाउन है, धोखे से कोई वार अगर कर रहा है, तो उसमें जान नहीं जानी चाहिए। तो वो मुद्दा हमने हासिल किया वहाँ पे। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थोड़ी मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी बढ़ी है, और एक बड़े प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेशन कैसे हैंडल होता है, एक लार्ज बजट साइज़ का। मेरे ख्याल से उस ज़माने में करीब हमने, आज से 10 साल पहले, 5-6 करोड़ रुपए खर्चे होंगे उस टाइम। बट वो क्योंकि हमने सब कुछ खुद किया, अपने प्रेमाइसेस में किया, तो उसका कॉस्ट काफ़ी कम पड़ा, और वो किट्स अभी तक चल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट। And then इसके बाद you came to your last leg of posting. Yes, after that I came to Mumbai, and I am in Mumbai. What were you, sir, मुंबई में? मुंबई में मैं महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा एरिया हेडक्वार्टर्स में एज AAG आया। मेरा रोल ह्यूमन रिसोर्स, डिसिप्लिन और फिनेंस, ये मेजर रोल था। और ये 2 साल मेरे लिए बड़े क्रूशियल थे, बिकॉज फौजी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा ये वो समय था जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब फौज से बाहर जाके कुछ और नया ट्राई करना चाहता हूँ। सो मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जो मेरी पढ़ाई लिखाई 20 साल पुरानी थी वो शायद काम ना आए, और जो कोर्सेज मैंने फ़ौज में किए हैं वो फ़ौज के लिए अच्छे थे, बट अगर मैं बाहर जाके बोलूँगा कि मैं तो मिसाइल कोर्स करके आया हूँ, तो मुझे नौकरी नहीं मिलने वाली क्योंकि बाहर मिसाइलें नहीं बिक रही हैं, और मुझे बिजनेस और जो बिजनेस के अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं उसकी जानकारी लेना ज़रूरी है। सो मैंने MBA ज्वाइन किया नरसिंह मोहन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। उसकी क्लासेस रात में होती थी, हर दिन 7 से लेके 11 बजे तक। तो एक नई चीज़ जो उस टाइम सीखी, अदर देन द बिजनेस, कि 5 बजे चर्च गेट से लोकल ट्रेन कैसे पकड़ी जाती है। सो NDA के एक अच्छे सेकंड टर्मर और थर्ड टर्मर को जैसे डाइव रोल करना सिखाया जाता है, वैसे डाइव रोल करके मैंने ट्रेन में जंप मार के चढ़ना सीखा, ताकि मुझे सीट मिल जाए और मैं आराम से जा सकूं। सो वो भी एक अच्छा एडवेंचर रहा, और 1.5 साल मैंने वो MBA किया। जब तक मैं रिटायर हुआ तब तक मेरा MBA तकरीबन खत्म हो गया था। And then after that you joined? After that I joined Yosan Corporation. Yosan Corporation is a South Korean multinational. उसके ATM बिजनेस का HR मैंने 4 साल तक हेड किया एज हेड HR नवी मुंबई में। और उसके बाद मैंने इसी साल मई में, यानी 4 महीने पहले, तकरीबन 4-5 महीने पहले, मैंने उनको भी अलविदा कहा, क्योंकि एक इच्छा मेरे दिल में थी शुरू से कि मैं अपना कुछ करना चाहता था, एक ऐसा काम जिस पे मेरी छाप हो, जहाँ पे मैं ये कह सकूं कि हाँ, ये पूरा मेरा बनाया हुआ है। एंड आई थिंक आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं उस पे भी आपकी छाप है। तो वो एक सेटिस्फैक्शन मुझे चाहिए था, और मैं आज एक अपनी कंपनी बना के, फ्लक्स विंग्स सॉल्यूशंस, जो कि एक HR ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी है,
तो अलग अलग तरह के ह्यूमन रिसोर्स सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि बिजनेसेस, खास करके स्मॉल बिजनेसेस जिनको कि आमतौर पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी समस्याओं को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। So, sir, here's one question. Yeah. Sometimes it's very difficult to set goals for a team, right? Yes. So goals that are challenging yet achievable. You know that कि ये goal बहुत challenging है, but you also know as a leader कि ये achievable भी है. तो how do you hit the right balance? देखिए, मैं एक कॉम्बैट आर्म से हूँ, तो लोगों को तो मैंने 20 साल हैंडल किया। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आरआर, यूएन, माओ, कहीं पे भी मैं गया तो आई वॉज कमांडिंग मैन, चाहे वो 30 थे, चाहे 200 थे, चाहे एज अ 2IC मैं अपने सीईओ को असिस्ट कर रहा था करीब 700-800 लोगों को कमांड करने में। और जब मैं बाहर आया तो मैं एक एमएनसी में एक आईटी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में था। तो टीम्स छोटी थी बट वहाँ पे एक अलग प्रकार का चैलेंज था, बट अगेन इट वाज द सेम थिंग दैट यू मेंशन कि गोल सेटिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप। गोल सेट करना आसान है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि चाहे फौज हो चाहे बाहर, लीडरशिप एक ऐसा वेरिएबल है जिसको कि अगर सही तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हैं, अगर लीडर्स अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, ग्रास रूट लेवल पे हर एक नुमाइंदे के साथ कनेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, तो आप गोल कोई भी दें, टीम उसको अचीव करेगी करेगी। और एक चीज जो मैंने अपनी पलटन में सीखी, हैप्पी टीम इज द मोस्ट प्रोडक्टिव टीम। आप अपनी टीम का ख्याल रखिए, टीम आपका और आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का ख्याल अपने आप रखेगी। इसमें मेरा बहुत विश्वास है, और अब वो विश्वास और गहरा हो गया है क्योंकि अब तो मैंने फौज में भी वो करके देखा है सक्सेसफुली, और मैंने बाहर भी, फौज के बाहर भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी करके देखा है सक्सेसफुली। मुझे कोई इस बारे में शक शुबा नहीं। So these days, what are you doing, sir? What are your opinions about veteran hiring? वेटरन हायरिंग, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, एंड आपको भी मालूम है कि हर साल 60,000 से ज्यादा लोग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से अलविदा कहकर बाहर आ जाते हैं। इनकी उम्र होती है एनीवेयर बिटवीन 30 एंड 55, मतलब ज्यादातर लोग यंगर एज ब्रैकेट के ही हैं, और इसमें ऑफिसर तो कम है, मेजर चंक जो है वो जवानों का है, जेसीओस और एनसीओस, जो कि 35 साल 40 साल की उम्र में रिटायर्ड का टैग लगा लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा टैलेंट पूल है जिसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतना ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है इनके अंदर, जिसको कि अगर टैप किया जाए तो कॉरपोरेट वर्ल्ड इतना फायदा उठा सकता है, इतना बेनिफिट ले सकता है, जिसकी कि कोई सीमा मुझे तो नहीं दिखती। उसका एक छोटा सा कारण है, क्योंकि अब मेरे पास वो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों एंगल से। मैं आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द फेंस। डिफेंस फोर्सेस, आई डोंट feel that anybody would argue with me on this point that they are, if not the most, one of the most efficient organizations in this country and all over the world. That is the reputation they carry, because if a task or objective is given, they will deliver. अब एक व्यक्ति जो इस कल्चर में 10 से 15 साल रह जाता है, वो अपने साथ वो माइंडसेट लेके चल रहा है। उसको मालूम है कि अगर मुझे काम मिला है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये काम होगा या नहीं होगा। कैसे होगा सवाल है, वो मुझे साम दाम दंड भेद से करके देना है। ऐसा ह्यूमन रिसोर्स जिस कंपनी को मिले, अगर 10% भी लोग ऐसे आ जाएं तो वो कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी। प्रोडक्टिविटी तो बहुत स्केल हो सकती है। बहुत ज्यादा। दूसरा, आप देखिए हमारे यहाँ आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात होती है। स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बड़ा वोलेटाइल सिस्टम है। आपको वहां पे क्या चाहिए? रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। फौजी से ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कहां पे आएगी?
जो लोग टास्क को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ का रिस्क उठाने के लिए तैयार थे, उससे ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आपको कहां मिलेगी? जब क्राइसिस हो, अब जैसे मान लीजिए कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया या बम ब्लास्ट हो गया, तो क्या होता है? सारी जनता वहां से दूर भागती है, फौजी उसकी तरफ भागता है। उसके दिमाग में एक प्रोसेस है, एक ड्रिल है। तो जब आपको भी एकेडमी में ट्रेनिंग मिली होगी तो डैश डाउन क्रॉल फायर की ड्रिल आपको सिखाई गई होगी, तो वो ये नहीं सिखाती कि डैश डाउन क्रॉल करना है दूसरी डायरेक्शन में, जहां से फायर आ रहा है उसकी तरफ जाना है आप, और देखना है कि फायर कहां से आ रहा है और उसको खत्म करना है। तो वो एक फौजी की ट्रेनिंग में इनहेरेंट है कि जब क्राइसिस हो तो उससे दूर नहीं भागना है, उसकी तरफ जाके और उसको खत्म करना है क्राइसिस को। ऐसे लोग आपको कहां मिलेंगे? बात कहां पे आके फंस रही है, जो कि मेरा एनालिसिस है और मैं इस क्षेत्र में काफी कुछ करने की कोशिश भी कर रहा हूं। कुछ गलती जो इंडियन आर्म फोर्सेस की है, अब गलती कहो या एक नजरिया कह लीजिए। जब हम सर्विस में थे, बाहर से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछता था तो हम एक वो कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। और जब हम सर्विस में थे तो हम अपनी एक कैंट में रहते थे और अपने एक क्लोज सिस्टम में रहते थे और हमें बाहर से कोई दीन दुनिया से मतलब था नहीं। नतीजा क्या है? फौजी जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी नहीं है, और जो कॉरपोरेट है उसके जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, जो टैलेंट एक्विजिशन वाले हैं, उनको ये नहीं पता कि ये फौजी क्या क्या कर सकता है। नतीजा, जब आप बोलते हैं फौजी को हायर कर लीजिए, नहीं अभी तो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई पोजीशन है नहीं हमारे पास। तो माइंडसेट ये है जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फौजी ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं बहुत सारे वेटरन्स के साथ टच में हूं और मैंने बहुत लोगों के साथ कनेक्ट किया है, जवान हो, जेसीओज हों, चाहे ऑफिसर्स हों, कोई लॉजिस्टिक्स में है, कोई वेयर हाउसिंग में है, सिक्योरिटी में है, लॉस प्रिवेंशन में है, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहा है, लोग साइबर सिक्योरिटी में हैं, लोग बैंकिंग ऑपरेशंस में हैं। जो ये बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, डेलॉयट, गोल्डमैन सॉक, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन चेस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये फौजियों को ऑनबोर्ड लेकर और भरपूर लाभ उठा रहे हैं। एक बार उन्होंने कभी ये एक्सरसाइज की, नतीजा इतना अच्छा निकला कि उन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया और एक वेटरन हायरिंग प्रोग्राम अपने यहाँ चलाया। बट जब मैं इंडियन कंपनीज की बात करता हूँ तो वो सिस्टम दिखाई नहीं देता। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने टाटास, बिरलास, जब हम कहते हैं बड़ी कंपनीज तो सबसे पहले टाटा बिरला का नाम आता है। टाटास, बिरलास, इन्फोसिस, आपकी जो भी इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस, अडानी, वेटरन्स इनके यहाँ हायर होते हैं बट कोई फॉर्मलाइज्ड प्रोग्राम नहीं है। एक इधर से आ गया, एक उस वैकेंसी में आ गया, एक इनफॉर्मल बेसिस पे। इनफैक्ट वेटरन्स की संख्या रिलायंस, अडानी जैसी कंपनीज में बहुत ज़्यादा है, काबिले तारीफ बात है। बट एक फॉर्मलाइज्ड सिस्टम जिसके अंदर की एक फॉर्मल प्रोग्राम के तौर पे, एक कमिटमेंट के तौर पे कि हाँ इतने वेटरन्स हमें अपने फोल्ड्स में लेने ही हैं एट ऑल लेवल्स, नॉट ओनली द ऑफिसर्स बल्कि जेसीओज और एनसीओज भी, ऐसा कोई कार्यक्रम मुझे नहीं दिखाई देता। और जब तक इंडियन कंपनीज इसमें पहल नहीं करेंगी तो बाकी से उम्मीद करना मुश्किल है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस दिशा में कि जहाँ तक हो सके ये एक टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। एक तो जो एक्स सर्विसमैन हैं, वेटरन्स हैं, उनको समझाना कि कॉरपोरेट क्या चीज़ है और आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक वेटरन आम तौर से उसकी एक ही समस्या होती है, एक तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट और सेल नहीं कर पाता, उसको थोड़ी हिचक होती है, थोड़ी शर्म आती है और वो थोड़ा झिझकता है कि नहीं सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब वो मुझे ले लें तो अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा अप्रोच रहता है। और वो ये नहीं समझ पाता है कि मैं इस कंपनी में जाके क्या क्या कर सकता हूँ, वो नहीं बता पाता कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। और कॉरपोरेट को भी मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वेटरन्स हैं उसके अंदर इंजीनियर्स हैं, नॉन टेक्निकल लोग हैं, उसके अंदर रेडार ऑपरेटर्स भी हैं, उसके अंदर
वो लोग भी हैं जो केमिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरफेयर पे ट्रेंड हैं, तो आपके केमिकल फैक्ट्रीज में लग सकते हैं और वो आपके हैजार्डस काम को हैंडल कर सकते हैं. ओके. So you mentioned that कि आप यूएन में थे and it was almost the clash between those groups and all, right? वेरी सीवियर क्लैश. तो ऐसा कोई मौका आया सर आपकी लाइफ में कि आप एकदम ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में थे, नॉट ओनली जस्ट यू बट द एंटायर पल्टन, द एंटायर कंपनी दैट यू वेंट विद, एंड ऐसा कुछ हुआ है कि यू हैव टू कम आउट ऑफ द इमिनेंट थ्रेट एंड डेंजर एंड you almost came out and severe challenges in extreme VUCA, extreme volatile and sudden. Yeah, so I told you about this incident when we sent our BMPs over 300 kilometers in one night, right? So this was a place called Pibor, 5,000 odd population, and most likely it was going to get run over by this very large group of tribals. They were armed with machetes, spears, even anti-aircraft guns mounted on Toyotas trucks. So they were also armed with RPGs and grenades. Now what happened was that we reached the town before this column reached. The BMPs, they reached the town. And my orders to the men were that clear the field of fire, because I had a feeling that we may get into a combat situation. अभी 10-12 हज़ार लोग अगर आपके सामने आ जाएं और वो बिल्कुल ही आमादा हों कि हाँ हमें तो इस विलेज को ख़त्म करना है और सारे लोगों को मार देना है, तो यूएन का एक स्टेटस ऐसा है कि वो साइड तो नहीं ले सकता किसी की. अगर आप इस गांव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो वो सामने वाले बोलते हैं आप उनकी साइड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो लड़ना शुरू करें. तो एक कंसर्टीना कॉयल जो बार्ब्ड वायर जैसी रहती है उसको हमने एक लगाया, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया. पूरे गांव के चारों तरफ एक मार्किंग की कि इसके आगे कोई नहीं आना चाहिए. और जब वो कॉलम वहाँ पे पहुँचा, हमारी बीएमपीज ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी थी और उनको ये मैसेज दिया गया कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो बीएमपी से आप पे फायर होगा. और फिर इस वक्त तक मेरे प्लाटून कमांडर वहाँ थे और फिर उन्होंने मुझे मतलब जब फ़ोन किया उन्होंने बोला कि सर यहाँ पर हमारे सामने लोग आरपीजी लेके खड़े हुए हैं और ये हमारी तरफ एम कर रहे हैं. और बीएमपी का क्या है कि एक टैंक की तरह उसमें ज़्यादा आर्मर नहीं रहता है. टैंक में 40-50 टन लोहा रहता है और बीएमपी में सिर्फ 14 टन लोहा है, तो आर्मर की थिकनेस बहुत कम है और अंदर करीब 450 लीटर से ज़्यादा फ्यूल है. तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कोई फायर करेगा तो वो ना सिर्फ कहीं अगर सही जगह पे लग गया तो वो छेद देगा बीएमपी के आर्मर को, और अगर फ्यूल में आग लग गई तो अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बचने वाला है. और ये मेरी सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि आप देखें अगर कश्मीर में हमारे लॉसेस होते हैं, कैजुअल्टीज़ होती हैं, और मुझे ये हमेशा ये लगता था कि कश्मीर में अगर मेरा कोई जवान मारा जाता है या मुझे कुछ हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है हमारी अपनी ज़मीन है और हमारी अपनी लड़ाई है. फॉरेन सॉइल पे दूसरी कंट्री में दो दूसरे ग्रुप्स की लड़ाई के बीच में अगर मेरा जवान घायल होता है तो मुझे ना थोड़ा पच नहीं रहा था वो. तो मेरा यही मुद्दा था कि मेरे जवानों को कुछ नहीं होना चाहिए. और उस वक्त मैंने ये डिसीजन लिया, अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब से भी बात की. मैंने शायद नहीं मेंशन किया होगा, मैं 2 पैरा एसएफ के साथ डिप्लॉयड था वहाँ पे. बहुत ही उम्दा सीओ साहब थे हमारे. तो कर्नल वर्धन जो हमारे सीओ थे उनसे मैंने बातचीत की और ही वॉज वेरी मैग्नानिमस. ही सेड दैट इट इज़ योर कॉल. एंड देन the way we work in mechanized infantry, I gave the leeway to the gunner of those BMPs, and I told them that if someone as much as gets ready to fire at you, please fire before he fires, because एक फायर अगर दूसरी तरफ से सक्सेसफुली हो जाता तो मैं 10 आदमी खोने के लिए तैयार नहीं था. और गनीमत ये हुई कि किसी ने फायर किया नहीं.
क्योंकि हमने जितने मनूवर करके हम उनको थ्रेटन कर सकते थे हमने किया, और शायद वो टैक्टिक्स हमारी काम कर गई। और कुछ उनमें डर पैदा हुआ कि अगर इनका फायर आया तो हमने काफ़ी मज़ेदार चीज़ें की उसमें। हमने जो 30 mm कैनन के राउंड्स थे वो खोल खोल के उनको दिखाए कि दोस्त ये फायर करेंगे तुम्हारे ऊपर, तो शायद उनको कुछ डर का एहसास हुआ और वो स्थिति टल गई। दूसरा मौका आया जब ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ और वो गांव बच गया, उसमें 5,000 जानें बच गईं। बाद में ऑफ कोर्स उसमें इन्फेंट्री के बहुत सारे एलिमेंट आए, बांग्लादेश आर्मी, हमारी आर्मी, मराठा यूनिट, पैरा, लोगों ने उसको पूरा घेराबंदी करके उस गांव को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद हम इनिशियल रिस्पॉन्डर थे और हमने उस गांव को होल्ड कर लिया कुछ समय तक। सो जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और जो SRSG, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल थी वहाँ पे मोहतरमा, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। और फिर जो ऑपरेशंस ब्रांच थी उन्होंने कहा कि ये BMP बहुत इफेक्टिव है और ये हमें यहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए। तो मैंने कहा भाई BMPs तो हमारे पास इतनी है तो हम कहाँ कहाँ ले जाएंगे। एंड आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद पुटिंग 2 BMPs in one place. It is not as per our tactics. We work in platoons and I was not mentally prepared to break my platoons. However, then it was the demand of the day and we had to deliver the goods. अब मुद्दा ये आया कि जिस जगह पे वो BMP ले जाने के लिए कह रहे थे वहाँ तक जाने का कोई लैंड रास्ता हमारे पास था नहीं। यहाँ जहाँ हम 300 किलोमीटर गए एक रात में, वहाँ पे कम से कम ज़मीन थी, यहाँ पे डेस्टिनेशन और हमारे बीच में मार्श लैंड था, BMP नहीं जा सकती। तो हमने उनको बताया तो काफ़ी तिकड़म लगाई गई, बहुत इसके ऊपर सोच विचार हुआ और उसके बाद हुक्म आया कि हेलीकॉप्टर से भेजो। अभी हेलीकॉप्टर से BMP को भेजना भी एक चैलेंज है, उसके ऊपर भी कोर्स कराए जाते हैं जो कि हमने तो किया नहीं था, तो जानकारी हमें थी नहीं। बट फिर जब हुक्म आया तो एक हिंदुस्तानी सोल्जर हुक्म की तामील करता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, फाइंडिंग द सॉल्यूशन वेरी टाइम तो कॉर्नर। इसमें मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि एक जगह थी अकोबो, वहाँ पे BMPs ले जानी थी। तो नासिर नाम की जगह से मैंने 2 BMP ईयर मार्क की कि ये जाएंगी। तो मैं एक दिन पहले एक हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ पहुँचा और हमने अपना दिमाग जितना भी लगा सकते थे लगाया कि कल की तैयारी कर ली। जब वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर वहाँ पे आया तो रशियन क्रू था, तो आई मेट द पायलट, तो आई टुक हिम टू वन साइड। आई सेड हैव यू डन दिस बिफोर? कहता है डन व्हाट? आई सेड लिफ्टेड BMPs or tanks for that matter. He said no, you have not done it before. I said no, even I have not done it before. कहता wow, this is great. I said yes, sounds great. So मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या है इस BMP को उठाने के लिए। तो उसने मुझे बताया कि मैं कंटेनर्स उठाता हूँ, एक हार्नेस है मेरे पास, उससे मैं कंटेनर उठाता हूँ। तो फिर हमने उस कंटेनर उठाने वाली हार्नेस का मुआयना किया, फिर हमने एक BMP खड़ी की, फिर हमने BMP के कुछ पार्ट खोल खाल के हमने BMP के अंदर डाल दिए। और फिर मैंने उस पायलट को कहा कि देखिए हमने अभी BMP को नीचे से वो कर करा के बांध दिया है, अब आप एक काम करेंगे, आप इसको उठाइए, फिर नीचे लाइए, फिर उठाइए, ऐसा 3 बार करिए। अगर ये 3 बार में सक्सेसफुल हो गया तो तीसरी बार लैंड मत करना, चले जाना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर देखी जाएगी। वी जस्ट टुक अ कॉल एंड जब तक वो रिपोर्ट मुझे नहीं मिली कि वो BMP पहुंच गई है सक्सेसफुली, तब तक मेरा दिल थोड़ा धड़क रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कहीं ये BMP कहीं रास्ते में ये डंप ना कर दे। तो वो एक हार्नेस से वो BMP करीब 10 मीटर नीचे उसके लटक रही थी और वो उसको उस तरह से ले गया। वहाँ से रिपोर्ट मिली फ़ोन पे, मेरी जान में जान आई एंड ऑल ऑफ अस चीयर्ड एंड देन वो दोबारा आया और फिर दूसरी BMP को भी ले गया। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव वाक़ये बहुत हुए वहाँ और आई एम हैप्पी दैट वी डिड इट। इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं तो कंपनी कमांडर था, मैंने तो बोल दिया अपने JCOs और NCOs की कि भाई ये BMP जानी है। उसके बाद हम सब लगे एज अ टीम। तो किसी ने बोला कि साहब ये ऐसे कर सकते हैं, किसी ने बोला साहब ऐसे कर सकते हैं। एवरीवन वाज कंट्रीब्यूटिंग, इट वाज अ टीम एफर्ट। उसके अंदर हमने जो हिंदुस्तानी जुगाड़ होता है उसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और ऐसे काफ़ी सारे काम किए
वहाँ पे हमारे पास लॉजिस्टिक्स की सप्लाई नहीं थी। जैसे हम यहाँ लड़ाई लड़ते हैं तो पीछे एक लॉजिस्टिक्स टेल जिसको कहते हैं वो नहीं थी। हमने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया। मैंने बीएमपी के 10 आदमी घटा के 5 आदमी कर दिए, 6 आदमी कर दिए, और जो 3 आदमी उसमें से 4 आदमी कम हुए, मैंने उसकी जगह पे राशन, पानी और फ्यूल डाल दिया। और मैंने कहा अब ये सेल्फ कंटेन्ड है, अब अगले 500-600 किलोमीटर तक आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। और वो मेरे जवानों ने कहा हाँ साहब ये सिस्टम चलेगा, कोई बात नहीं, कम है लोग तो क्या हो गया, बीएमपी तो है, उसकी मेन गन तो है, फायर करना होगा हम करेंगे, उसकी मशीन गन है, 5000 राउंड है हमारे पास, हम करेंगे। तो वो लड़ाई करने की क्षमता फिर भी थी, बट अब सेल्फ सस्टेनिंग वाली जो क्षमता है वो भी आई। तो इस तरह के काफ़ी जुगाड़ हमने किए, काफ़ी अपना दिमाग लगाया। और मुझे याद है कि जब भी कोई जवान छुट्टी जाता था तो मेरा इंटरव्यू होता था उसके साथ, तो मैं उसको एक स्पेयर पार्ट थमाता था कि आप पहले जाएंगे हिसार में, जाके सीओ साहब को राम राम करेंगे, और सीओ साहब के मिलने के बाद ओसी वर्कशॉप साहब को ये पार्ट ले जाके देंगे, वो आपको इसके बदले में नया पार्ट देंगे उसको लेके आप घर जाइए, और घर से जब लौट के आ रहे हैं तो इस स्पेयर पार्ट को साथ में लेके आ जाना। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द सेट। आई एम श्योर कि ये एपिसोड देख करके बहुत सारे लोगों को पता चला होगा एग्जैक्टली मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है, एंड आई होप सो। what are the challenges involved because Yeah. of because of the danger, or rather being vicinity में खाली गोला बारूद ही नहीं है बट फ्यूल भी है, Yes. so threat to life बहुत high है। Yes. And plus thank you for sharing the valuable experience, especially the UN and all. So that was all about it guys. Roger that with NKC Awesome Like Qualities की कहानी ex GTO की जुबानी। Stay tuned, like, share, subscribe my channel, and share it with your friends and families, because ultimately this is a channel where it is know your armed forces. Thank you.